Hello everyone, welcome to all of you, Sri Education Hub for online classes of chemistry. In our last class, we study about some chemical properties of alkyl halide, in which first is our chemical property is formation of alcohol with the help of alkyl halide, and second reaction is formation of thiol with the help of alkyl halide, and third one is formation of amines. This reaction is also known as Huffman ammonolysis. With the help of this reaction, we can prepare 1 degree, 2 degree, 3 degree amines and tetraammonium salt. This reaction is an important name reaction. And next reaction is our formation of ether. This reaction is also known as Williamson ether synthesis. It is also an important name reaction. And next is our formation of alkyne. And today we start next chemical property, that is our formation of cyanide. In this reaction, when alkyl halide react with alcoholic potassium cyanide, gives alkane nitrile or alkyl cyanide. Clear? In this reaction, alkyl halide react with alcoholic potassium cyanide and gives alkane nitrile and gives KX as a side product. If we take a particular example, if alkyl halide means here methyl chloride react with potassium cyanide, gives ethane nitrile plus KCl. And next reaction is our formation of isocyanide. If alkyl halide react with alcoholic silver cyanide, gives us alkane isonitrile or alkyl isocyanide. Alkane isonitrile or alkyl isocyanide. In this reaction, alkyl halide react with silver cyanide. In this reaction, AgX is eliminate in the form of side product, and our main product is alkane isonitrile. Clear? Here we take a particular example. CS3Cl react with AgCN, gives CS3NC, means methane isonitrile plus AgCl. And next reaction is our formation of nitroalkane. When alkyl halide react with AgNO2, means silver nitrite. This reaction is also completed in alcoholic medium, means here we use alcoholic silver nitrite, gives us nitroalkane. And if we take a particular example for this reaction, when methyl chloride CS3Cl react with AgNO2, gives us CS3NO2, means nitromethane. The next reaction is our formation of alkyl nitrite. If alkyl halide react with KNO2, gives us RONO, means alkyl nitrite. Clear? In this reaction we mind the some points. कुछ बातों का हमें इसमें स्पेशल ध्यान रखना है. याद करने की ट्रिक अलग है और फैक्ट इसमें अलग है. तो मैं आपको दोनों चीज़ें यहाँ बताने वाला हूँ कि चारों रिएक्शन जो हमने यहाँ पर रिएक्शन की है 6th, 7th, 8th एंड 9th, all 4 reactions are most important because in these reaction students are generally confused. तो इसके अंदर मैं आपको याद रखने की ट्रिक और जो फैक्ट है इस रिएक्शन के पीछे, वो दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. अब इसके अंदर अगर हम देखें, यहाँ हमने लिया है फॉर्मेशन ऑफ
साइनाइड। इसके अंदर RX एल्किल हैलाइड रिएक्ट करता है KCN के साथ, KCN। यहाँ पर पोटेशियम और कार्बन के बीच यहाँ जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा ये आयोनिक बॉन्ड होगा। क्लियर? आयोनिक बॉन्ड होगा जो इजीली ब्रेक हो जाएगा, और कार्बन, या हम ये कहें कि हमारा जो ये पार्ट है CN in the form of CN minus, it is act as nucleophile and it attacks on alkyl halide molecule. Clear? Then we get our product RCN. Clear? कोई डाउट है? अगर यहाँ पर हम इस एल्किल हैलाइड के साथ में यूज करते हैं AgCN, Ag और कार्बन यानी सिल्वर और कार्बन, इसके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है ये कोवलेंट बॉन्ड होगा। कोवलेंट बॉन्ड, कंप्लीट हम कोवलेंट बॉन्ड इसको नहीं कह सकते, बट इट हैव मोर कोवलेंट प्रॉपर्टी एज कंपेयर कार्बन एंड पोटेशियम बॉन्ड। क्लियर? जिसके कारण से सिल्वर और कार्बन के बीच का बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगा, और वी नो दैट नाइट्रोजन हैव लोन पेयर्स, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। सो इट मीन्स नाइट्रोजन एटम अटैक्स ऑन एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल, देन कंडीशन इज RNCAg, और इसके बाद में ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ X माइनस, और यहाँ से ओवरऑल जो एलिमिनेशन होगा वो इस AgX का एलिमिनेशन हो जाएगा, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बचेगा RNC। क्लियर हुआ? ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें, जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं AgNO2 के साथ, मीन्स AgONO, इस कंडीशन में भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन और सिल्वर के बीच का, यानी हमने यहाँ पर सिल्वर नाइट्राइट लिया है, इसके बीच का बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगा। इसके अंदर कुछ कोवलेंट प्रॉपर्टी होंगी जिसके कारण से इट इज़ नॉट इजीली ब्रेक, एंड नाइट्रोजन अटैक्स ऑन एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल, और कंडीशन सेम उसी तरह से यहाँ पर बनेगी RN डबल बॉन्ड O और Ag, और X माइनस की प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ से ये X माइनस रिमूव होगा, इसकी प्रेजेंस में यहाँ से ओवरऑल AgX एलिमिनेट हो जाएगा, और आवर फाइनल प्रोडक्ट इज RNO2। क्लियर? अगर यहाँ हम ले रहे हैं एल्किल हैलाइड के साथ में पोटेशियम नाइट्राइट KONO, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड है, इजीली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर जो अटैकिंग स्पीसीज होगी ये ऑक्सीजन एटम अटैक करेगा यहाँ पे इस एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल पे, एंड आवर फाइनल प्रोडक्ट इज RONO। क्लियर? तो यहाँ पर ये चारों रिएक्शन आप लोगों को आई थिंक अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। इस रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो बन रहा है एल्किल नाइट्राइट। अब इसके अंदर याद रखने की जो ट्रिक है, इसके अंदर आपको याद क्या रखना है, अच्छी तरह से अगर हम इन चारों रिएक्शंस को एक साथ स्टडी करते हैं तो यहाँ हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, उसको हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना है। वो क्या चीज़ है जिसके बेस पर हम इनको ईजीली याद रख सकते हैं। देखो इसके अंदर अगर हम यहाँ पर सिल्वर का यूज़ करते हैं, सिल्वर साइनाइड हो या सिल्वर नाइट्राइट हो, इन दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होगा कि नाइट्रोजन एटम जो है, ये नाइट्रोजन एटम
ये इस एल्किल ग्रुप के साथ अटैच हो रहे हैं। ऐसे ही इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ भी ये नाइट्रोजन एटम इस एल्किल ग्रुप के साथ में अटैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, याद रखने के लिए अगर हम देखें, इफ़ वी यूज़, ये कोई फैक्ट नहीं है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये कोई फैक्ट नहीं है, सिर्फ एक याद रखने की एक ट्रिक है। इफ़ वी यूज़ सिल्वर मीन्स Ag, देन नाइट्रोजन एटम is attached with एल्किल ग्रुप। क्लियर हुआ? अब अगर ये चीज़ याद रहती है तो दूसरी चीज़ को याद रखना बिल्कुल ईजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि अगर हम यहाँ पर पोटेशियम का यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि नाइट्रोजन को छोड़कर अगर मैं ये कहूँ, इफ़ वी यूज़ पोटेशियम यानी K, देन एक्सेप्ट नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम को छोड़कर अनदर एटम इज अटैच्ड विद एल्किल ग्रुप। क्लियर? आई थिंक याद रखना बिल्कुल इजी हो जाएगा इस मेथड की हेल्प से। तो ये चारों रिएक्शन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर इनमें किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनके अंदर कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है। क्लियर? देन उसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं हमारी 10th रिएक्शन। टेंथ रिएक्शन, formation of एल्केन, एल्केन का फॉर्मेशन। एल्केन का फॉर्मेशन किस तरह से होगा? अगर हम यहाँ देखें तो एज ए न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस, यहाँ पर H माइनस जो है हाइड्राइड आयन, ये अटैक करेगा हमारे एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल पर। इसके लिए हम यहाँ पर किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन RX हम करवाएंगे यहाँ पर LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, और इसकी हेल्प से जो हमारे पास में प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट होंगे RH प्लस AlX3 प्लस LiX। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर ये LiAlH4 में टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हैं, सो वी रिक्वायर्ड 4 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड। क्लियर? पर्टिकुलर एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं CH3Cl प्लस LiAlH4, then it gives CH4 plus AlCl3 प्लस LiCl। यहाँ इसको हम बैलेंस करें तो इसके 4 मॉलिक्यूल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? इसके बाद में हम नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ, our 11th reaction is formation of alkane with the help of organometallic compounds।
फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। यहाँ हम ये रिएक्शन देखें तो यहाँ पर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ किया था, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो आगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लेसन के अंदर स्टडी करेंगे LiAlH4 के बारे में। क्लियर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ हमें यूज़ करना है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। किसका यूज़ करना है हमें? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहाँ मैं लिख देता हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की हेल्प से। तो इसके अंदर देखो, यहाँ हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं? किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ में। और यहाँ जो हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे RLi। यहाँ जो हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूज़ करेंगे वो क्या होगा? RLi। क्लियर। अब इसके अंदर हम देखें RX एल्किल हैलाइड प्लस, यहाँ मैं इसको सेपरेट करने के लिए R' लिख देता हूँ। एल्किल लिथियम है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। यहाँ से जो एलिमिनेशन होगा इस Li और इस X का एलिमिनेशन होगा और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? R' प्लस LiX। पर्टिकुलर एग्जांपल की अगर हम बात करें, अगर यहाँ हमने लिया है C2H5Br प्लस यहाँ हमने लिया है CH3Li यानी मेथिल लिथियम, देन इट गिव्स अस, इसको मैं से लिख सकते हैं C2H5CH3 या इसको मैं लिख सकता हूँ C3H8 यानी एन प्रोपेन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा प्लस LiBr। क्लियर। अब इन दोनों रिएक्शन में जो हमने 10th रिएक्शन की थी और जो हमने 11th रिएक्शन की है, इन दोनों के अंदर एक चीज़ का डिफरेंस है जिसका हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि यहाँ जब हम रिएक्शन करवाए थे LiAlH4 के साथ में, तो यहाँ अगर हमने N कार्बन का एल्किल हैलाइड यूज़ किया है तो यहाँ भी हमारे पास में N कार्बन का ही एल्केन बनता है। क्लियर। बट इन दिस कंडीशन if we use N carbon alkyl halide, here we gets N carbon plus N carbon, means यहाँ ये जो N कार्बन है ये हमारे पास में कहाँ से आएंगे? एल्किल हैलाइड से आएंगे। यहाँ जो हम इन N कार्बन की बात कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास में जो ये N कार्बन आएंगे ये किससे आएंगे? RLi से आएंगे। क्लियर है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड, इन दिस सिचुएशन वी गेट्स हायर एल्केन सिंपल वर्ड में हम क्या कह सकते हैं? इन दिस केस वी गेट्स हायर एल्केन। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम इसमें बात करें, formation of ester. Next reaction is our 12th reaction is formation of ester. ester का formation। इसके अंदर देखो हमें क्या देखना है? if silver salt of carboxylic acid, if silver salt of carboxylic acid react with alkyl halide, क्या क्या लेना है हमें यहाँ पर? सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है और एल्किल हैलाइड लेना है। मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं RX प्लस सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स AgOCO R', then our product
यहाँ से इस AgX का एलिमिनेशन होगा और जो हमारा प्रोडक्ट है फाइनली क्या बनेगा, ROCOR डैश, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। यहाँ अगर हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल को देखें, इफ़ वी यूज़ C2H5Br means ethyl bromide react with AgOCOCS3 means silver salt of acetic acid, or we can say silver acetate. Then what will be our product? Here AgBr eliminate and we get C2H5OCOCS3। क्या नाम होगा इसका? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट। यहाँ पर ये पार्ट है एथिल और ये जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा, ये पार्ट है एसिटिक एसिड से आया हुआ, सो इट इज़ एथिल एसीटेट। तो ये जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की हैं एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की। इसमें जो हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन थी जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें किस किस टाइप की रिएक्शंस को स्टडी करना है। उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN रिएक्शन, ये जो पार्ट है हमारा कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की, एंड जो रिमेनिंग हमारे जो पार्ट्स हैं रिएक्ट विद मेटल्स एंड अदर रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड। सो हैव ए गुड डे।